Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya, and I welcome you all to my channel PsychEd by Tanya. In the last session, we covered in detail the behavior therapy and the cognitive therapy, and we also read about CBT, which is the integration of the two, right? And in today's session, we are going to start with humanistic existential therapy, and hopefully, we are going to complete this chapter with this session only, as very few topics are remaining. Okay, so without any further delay, let's begin. Okay. Humanistic existential therapy. The humanistic existential therapies postulate that psychological distress arises from the feelings of loneliness, alienation, and an inability to find the मीनिंग एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ. बेसिकली ये वाली थेरेपी क्या कंसिडर करती है कॉज कि एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन, एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट, और एक होता है ना सेंस ऑफ एमलेसनेस और पर्पस नहीं है कुछ लाइफ का. तो जब वो वाली फीलिंग्स आपके अंदर आने लग जाती है दैट आई डोंट नो इफ आई एक्चुअली हैव समबडी फॉर विच आई एम लिविंग माई लाइफ, और एक सेंस ऑफ पर्पस जब आपको फील नहीं होता है, दैट लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. ये ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पॉस्टुलेट करती है. Human beings are motivated by desire for personal growth and self-actualization and an innate need to grow emotionally. बेसिकली वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर एक इनेट टेंडेंसी होती है जिससे बिकॉज ऑफ विच दे वांट कि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो, दे अचीव हाइट्स, दे सेल्फ एक्चुअलाइज, बेसिकली दे रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स. ठीक है, हमने अब्राहम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा है, तो उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट वन, कि यू फील टोटली fulfilled and you have that sense of accomplishment in your life, right? And an innate need to grow emotionally. When these needs are curbed by society and family, अब किसी भी रीज़न की वजह से उस चीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन आती है and the person is not able to achieve it, the person is experiences psychological distress. ठीक है. Self actualization is defined as an innate or inborn force that moves the person to become more complex, balanced and integrated, that is achieving the complexity and balance without being fragmented. ठीक है, विदाउट बीइंग फ्रेगमेंटेड मतलब ऐसे नहीं टुकड़ा 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 टुकड़ा, कुछ चीज़ यहाँ कर दी कुछ चीज़ यहाँ कर दी, नहीं. यू अचीव कॉम्प्लेक्सिटी एंड बैलेंस. आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ एक्वायर करके, एक साथ सीख कर, एक साथ उसमें सक्सीड होकर, एंड यू अचीव अ बैलेंस इन योर लाइफ. इट इज़ एन इनेट टेंडेंसी विच इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग दिस. Integrated means a sense of whole, being a complete person, being somebody who has done something with their life, who has people around him to appreciate him. ऐसे, ठीक है. Being in the essence of the same person in spite, being in essence the same person in spite of a variety of experiences that one is subjected to. मैंने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस करी, ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा, बट स्टिल मैं ऐसे नहीं फील कर रही कि मैंने यहाँ भी कुछ नहीं कर पाई, यहाँ भी कुछ नहीं कर पाई, यहाँ भी कुछ नहीं. इट्स अ सेंस ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड एंड अ सेंस ऑफ बीइंग होल, कि मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी एंड दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई हैव डन. ठीक है, यू हैव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी इन यू, राइट? Just as lack of food or water causes distress, frustration of self-actualization also causes distress. किसी भी वजह से अगर आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हो and the need of self-actualization is blocked, it leads to frustration और आपको उसकी वजह से psychological distress face करना पड़ता है. Healing occurs when the client is able to perceive the obstacles to self-actualization and is able to remove them. इंसान ठीक कब होगा, उसको समझ में आए कि एक्चुअली किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम अकर हो रही है, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंच पा रही हूँ, एंड देन आई हैव द एबिलिटी टू इवन रिमूव दैट ऑब्स्टेकल एंड रीच टू दैट लेवल. ठीक है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिक्वायर्स फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन, एक्चुअली टेलिंग वॉट यू फील. The family and society curb emotional expression as it is feared that a force of expression of emotions can harm the society by unleashing destructive forces. एक तरह से ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करी होगी हमने सब ने. वी कैन नॉट एक्सप्रेस ऑल द इमोशंस दैट वी फील टू द सोसाइटी और टू द पीपल अराउंड अस. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान नहीं शेयर कर पाता है. यूजुअली इन कंडक्ट डिसऑर्डर्स ऑल्सो और मे बी सम सॉर्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो इंसान किसी से भी सोसाइटी में शेयर नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ विच अंदर ही अंदर वो चीज़ उसे खाती रहती है एंड दे फील डिस्ट्रेस्ड. ठीक है. तो और ये चीज़ सोसाइटी क्यों नहीं करती है कि वो एक्सप्रेस करवाए, क्योंकि वो थॉट्स ही ऐसे हैं. अगर किसी को कंडक्ट डिसऑर्डर है या वो चीज़ें ही हार्मफुल सोच रहा है जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, कुछ ऐसा रेडिकल चीज़ है,
मे बी द पर्सन इज़ वेरी अग्रेसिव, वो कुछ लड़ने झगड़ने को प्रमोट कर रहा है, तो वो चीज़ तो सोसाइटी नहीं अनलीश करना चाहेगी. दैट इज़ वाई जो एक होता है ना, एक रूट से उस चीज़ को फिर हैंडल नहीं करा जाता है, जिसकी वजह से बाद में वो एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बनकर अपीयर होती है. This curve leads to destructive behavior and the negative emotions by thwarting the process of emotional integration. उस person में एक sense of whole ही नहीं आता है, उसको लगता है कि now this is the only way to deal with the things. ठीक है, तो destructive behavior और negative emotions arise then. Therefore, the therapy creates a permissive, non-judgmental and accepting atmosphere जहाँ पर ये चीज़ trust कराई जाती है कि everything you tell is between us, is confidential, and we are not judging you on any basis. You can tell us whatever you want, whatever your thoughts are, है ना. Person can freely express and the complexity, balance and integration could be achieved, and then उसको एक वे प्रोवाइड करा जाता है जिससे वो बैलेंस स्टेट में आ पाए, सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड बैलेंस अचीव कर पाए. ठीक है, द फंडामेंटल अजम्पशन इज दैट द क्लाइंट हैज़ द फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल हर और हिज ओन बिहेवियर. जो भी उसको करना है लाइफ में वो उसकी खुद की चॉइस है, तो वो चीज़ हमें सुननी है, उसको वो चीज़ एक्सप्रेस करने का एक पाथ प्रोवाइड करवाना है. The therapist is merely a facilitator and guide. It is the client who is responsible for the success of therapy. वो खुद अपनी इमोशंस को समझते हैं, खुद के क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसे समझते हैं, एंड देन कैसे डील करना है वो भी वो खुद ही समझते हैं. द थेरेपिस्ट जस्ट एक्ट्स एज अ गाइड, कि वो उसके इमोशंस को और बेटर इंटरप्रेट करने में उसे हेल्प करता है एंड उसको एक एक्सप्रेसिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. The chief aim of the therapy is to expand the client's awareness. Healing takes place by process of understanding the unique personal experience of the client by herself or himself. वो खुद को समझता है, थेरेपिस्ट को कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती. The client initiates the process of self-growth through which healing takes place. Easy? Next comes the types of therapies which are included in this. The first is existential therapy, which was given by Viktor Frankl, a psychiatrist and neurologist who propounded the logotherapy. Existential therapy और logotherapy similar to है, ठीक है. Logos is the Greek word for soul and logotherapy means treatment for soul. Psychology में पढ़ा होगा psyche and logos, ठीक है, तो वैसे ही logotherapy means treatment for the soul. Frankl calls this process of finding meaning even in the life-threatening circumstances as the process of meaning making. Finding meaning, distressful situation may be, life-threatening situation may be, is called the process of meaning making. और इस चीज़ का बेसिस क्या है? A person's quest for finding the spiritual truth of one's existence, कि actually मैं हूँ क्यों, मेरा purpose क्या है इस life में, what is the aim of the life I am living. Just as there is an unconscious which is repository of instincts, there is a spiritual unconscious which is the storehouse of love, aesthetic awareness and the values of life. जैसे अनकॉन्शियस नीड्स के लिए हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड है, जो भी हमारे इंस्टिंक्टिव वैल्यूज है, एड ईगो, सुपर ईगो एंड ऑल आर इरेशनल थॉट्स, बिलीव्स, फियर्स, वो सब के लिए हमारे पास कौन सा रिजर्वॉयर है? अनकॉन्शियस. ठीक है, सिमिलरली एक स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस के बारे में विक्टर फ्रैंक ने बात करी, जिसमें हमारी जो एस्थेटिक नीड्स हैं, जो हमारी लव, इमोशंस, इन सबसे रिलेटेड नीड्स हैं, उनके बारे में आपका वैल्यू स्टोर्ड है. ठीक है, न्यूरोटिक एंजाइटीज अराइज व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ आर अटैच्ड टू द फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वंस एग्जिस्टेंस. तो आपके माइंड में आपकी न्यूरोटिकली एंजाइटी प्रोवोक होना शुरू हो जाती है व्हेन इट टारगेट्स दीज एरियाज. Frankl emphasized the role of spiritual anxieties in leading to meaninglessness and hence it may be called existential anxiety. और जब वो चीज़ ना फिजिकल ना साइकोलॉजिकल डायरेक्टली आपके स्पिरिचुअल माइंडसेट को या स्पिरिचुअल स्टोर हाउस को अगर वो अफेक्ट करती है, तो द पर्सन फील्स मीनिंगलेसनेस इन हिज लाइफ और उसको एक सेंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होती है, वो एमलेस फील करता है अपनी लाइफ में एज टू व्हाट टू डू नाउ. ठीक है, the goal of logotherapy is to help the patients to find meaning and responsibility in their life irrespective of their life circumstances. ठीक है, जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बट स्टिल यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस इन योर लाइफ. ये चीज़ उन्हें समझाई जाती है. The therapist emphasizes the unique nature of the patient's life and encourages them to find meaning in their life. वो ऐसी चीज़ों पर उन्हें फोकस करवाते हैं जो उनके बारे में अच्छी है, जो उनके यूनिक है उनके लिए, राइट.
जो सिर्फ वो कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बताते हैं एंड दे टेल देम कि दिस इज़ व्हाट यू आर मेंट फॉर, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस, दिस इज़ व्हाट यू आर लिविंग फॉर. Okay, in logotherapy, the therapist is open and shares her or his feelings, values, and her or his own existence with the client. कि मैं क्यों हूँ, मैं बताऊंगी. इफ अ पर्सन इज फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ एमलेसनेस, उसको समझ नहीं आ रहा है द पर्पस ऑफ देयर लाइफ, आई विल टेल मैंने कैसे उसको इसको आइडेंटिफाई करा था, या मैंने क्या चीज़ से समझा था कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का. तो आई एम ओपन टू शेयर व्हाट आई फील, व्हाट आर माई बिलीव्स रिगार्डिंग द थिंग्स दे आर टेलिंग मी, राइट. The emphasis is on here and now. अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सोच रहे हो, totally in present. Transference is actively discouraged. The therapist reminds the client about the immediacy of the present. ना past के बारे में सोचना है, ना present के बारे में सोचना है. सिर्फ अभी आपको अपना present ठीक करना है. जो circumstances हो गए हो जाने दो, जो consequences होने वाले हैं उनके बारे में मत सोचो. अभी क्या actions ले सकते हो, अभी क्या purpose लग रहा है life का, उस चीज़ के बारे में सोचो. The goal is to facilitate the client to find the meaning of her or his being. ठीक है. Then next comes client-centered therapy, which was given by Carl Rogers. ठीक है. Rogers combines scientific rigor with the individualized practice of client-centered psychotherapy. Rogers brought into psychotherapy the concept of self with freedom and choice as the core of one's being. ठीक है. खुद के बारे में हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, राइट. दिस आइडियल सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, ठीक है. द थेरेपी प्रोवाइड्स अ वार्म रिलेशनशिप इन विच द क्लाइंट कैन रिकनेक्ट विद हर और हिज डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग्स. जो चीज़ें अब समझ में नहीं आ पा रही थी, उन चीज़ों को वापस से एम्फसाइज कर समझना एक्चुअली है क्या वो. द थेरेपिस्ट शोज एम्पैथी, विच इज पुटिंग योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शू, अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली इंसान कैसा फील कर रहा है एंड एक्चुअली फीलिंग दोज इमोशंस योर सेल्फ. ठीक है. एज इफ इट वर हर और हिज ओन एंड इज वार्म एंड हैज़ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. कि जो भी वो क्लाइंट उससे बता रहा है वो उसे जज नहीं करेगा एंड जो भी हो द आउटलुक टुवर्ड्स दैट पर्सन विल रिमेन पॉजिटिव. एम्पैथी सेट्स अप एन इमोशनल रेजोनेंस बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट. एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप, कन्फाइडिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है. Unconditional positive regard indicates that the positive warmth of the therapist is not dependent on what the client reveals or does in therapy sessions. Even if you are sharing your aggressive thoughts or your unconscious thoughts, कुछ irrational है जो you know, but still the person in front of you, the therapist in front of you is going to show a positive behavior towards you and the person is not going to judge you in any case. ठीक है. This unique unconditional warmth ensures that the client feels secure and can trust the therapist and express herself or himself. The therapist reflects the feelings of the client in a non-judgmental manner. The reflection is achieved by rephrasing the statements of the client. That is, seeking clarifications to enhance the meaning of statement. मैंने कुछ बोला, मतलब मान लो आई एम द थेरेपिस्ट, मेरे क्लाइंट ने कुछ चीज़ बोली, तो आई बी आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, जस्ट रीफ्रेजिंग कि अच्छा तो आप ये कहना चाहते हो, अच्छा यू मीन दिस, ओके सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू इम्प्लाई इज दिस. आई यूज सच वर्ड्स इन सच वेज टू रीफ्रेज द स्टेटमेंट, जिससे वो इंसान खुद अपनी चीज़ को बेटर समझ पाए कि एक्चुअली मेरे साथ क्या फील कर रहा हूँ मैं, मेरे साथ क्या हो रहा है अभी. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन हेल्प्स द client to become integrated and to understand what is the actual feeling that they have inside them. जो पहले disintegrated थी, जो पहले इधर उधर बिखर गई थी एंड एक्चुअली वो वर्ड्स नहीं आ रहे थे कि एक्चुअली है क्या वो चीज़. ठीक है. तो वो चीज़ लाने में थेरेपिस्ट उन्हें फैसिलिटेट करते हैं. ओके. Again, personal relationships improve with an increase in adjustment. In essence, the therapy helps a client to become her or his real self, with the therapist working as facilitator again. Okay. Then comes Gestalt therapy, which is the last which we are going to read अभी. Gestalt School of Psychology पढ़ा है, sense of being whole, integrated. ठीक है. This therapy was given by Frederick Fritz Perls together with his wife Laura Perls. ठीक है, याद रखना है. Existential किसने दी है? विक्टर फ्रैंक ने. Then आपका क्या बोलते हैं, client centered is given by Carl Rogers and Gestalt therapy is given by Frederick Perls and Laura Perls. Okay. The goal of Gestalt therapy is to increase an individual's self-awareness and self-acceptance. This line comes a lot in your MCQ questions, तो इसको याद रखना. This line relates to what? Gestalt therapy. The client is taught to recognize the bodily processes and the emotions that are being blocked out.
समझना, रिकॉग्नाइज करना खुद को, क्या इमोशंस फील हो रहे हैं जो आप अभी अवेयरनेस में नहीं है, आपके अभी कॉन्शियसनेस में नहीं है. The therapist does this by encouraging the client to act out fantasies about feelings and conflicts. Actually show क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ फील हो रही है. This therapy can also be used in group settings. ये लाइन भी यूज होती है, ठीक है. क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज वन क्लाइंट, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इज वन क्लाइंट, बट ये वाली जो थेरेपी है इट कैन बी यूज विद अ ग्रुप ऑल्सो. Okay, then comes the next topic, factors contributing to healing in psychotherapy. Several factors हैं जो healing process को क्या करते हैं, assist करते हैं. Major factor क्या है, the techniques adopted by the therapist and उसका implementation कैसे हो रहा है. If a behavioral system and the CBT schools are adopted to heal an anxious client, the relaxation procedures एंड द कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग लार्जली कंट्रीब्यूट टू हीलिंग. कि अगर मैंने बिहेवियर थेरेपी अप्लाई करी है तो उसमें मैंने कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करी है, राइट. द थेरेप्यूटिक अलायंस, ठीक है. द नेक्स्ट इज व्हाट, द थेरेप्यूटिक अलायंस, जो क्या होती है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में फॉर्म होती है. तो वो कितने अच्छे से फॉर्म हुई है, कितनी अच्छी रिलेशनशिप है वो, दैट विल इम्प्लाई कैसी थेरेपी होने वाली है या कैसा हीलिंग प्रोसेस होने वाला है, ठीक है. क्योंकि रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द थेरेपिस्ट एंड द वार्मथ और एम्पैथी जो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना. At the outset of the therapy, while the patient and client is being interviewed in the initial sessions to understand the nature of the problem, she or he unburdens this, emotional problems being faced. And इस process को क्या कहा जाता है, कैथारसिस, जिसमें क्या होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है. ये इंपॉर्टेंट है. कैथारसिस बहुत बिल्कुल भी अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं करा हुआ है, इसको अच्छे से नोट कर लेना MCQ में का. ओके. There are several non-specific factors associated with psychotherapy. Some are those factors which are attributed to the patient and client and some to the therapist. These factors are called non-specific because they occur across different systems of psychotherapy and across different clients and patients and therapists. नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स एट्रीब्यूटेबल टू क्लाइंट आर, उसका मोटिवेटेड है कि नहीं है वो खुद को बेटर करने के लिए, एक्सपेक्टेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट की ट्रीटमेंट की वजह से या नहीं है, ठीक है. तो ये क्या होता है, पेशेंट वेरिएबल्स. एंड नॉन स्पेसिफिक जो थेरेपिस्ट को अप्लाई होता है, कितना पॉजिटिव नेचर है, एब्सेंस और अवेलेबिलिटी क्या है, एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो खुद से कुछ ना डील कर रहा हो, राइट. एंड प्रेजेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, वो चीज़ खुद कितना हेल्दी है द थेरेपिस्ट, तभी तो वो दूसरे को हेल्प कर पाएगा, ठीक है. अ पर्सन कैन नॉट हेल्प अदर पर्सन इफ द पर्सन हिमसेल्फ इज इन क्राइसिस, राइट. तो दीज आर व्हाट योर थेरेपिस्ट वेरिएबल्स. देन कम्स द एथिक्स ऑफ साइकोथेरेपी. क्या चीज़ें हैं विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ वाइल प्रैक्टिसिंग साइकोथेरेपी. ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड्स में आया था, ठीक है. तो डोंट थिंक ऑफ इट एज नॉट सिग्निफिकेंट, याद रखना है इसको. मैं तो मेरे पास चॉइस में था, मैंने खुद ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने तो दूसरा अटेम्प्ट कर लिया था. बट हो सकता है आपके पास चॉइस ना आए, तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस. इन्फॉर्म कंसेंट ली जानी चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली में मेंटेन करनी चाहिए. द डेटा शुड नॉट गो एनी वेयर फ्रॉम यू. Alleviating personal distress and suffering should be the goal of all attempts of the therapist. आप जो भी चीज़ कर रहे हो, it has one and only goal. उसका जो psychological distress है, personal distress है, उसका reduction is the sole goal of your therapy. Okay. Then integrity of the practitioner-client relationship is important. कितनी honesty है आपके बीच में, कितनी integrity है आपके बीच में, ठीक है. रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी. आप कुछ ऐसा नहीं करोगे उस थेरेपी के दौरान जो उसके राइट्स को क्या कर रहा है, एक तरह से उसको टेक अवे कर रहा है. यू नीड टू टेक केयर ऑफ हिज डिग्निटी एंड द राइट दैट द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू. Professional competence and skills are essential. Do not practice any sort of therapy if you yourself are not trained enough, ठीक है. You have to be trained enough. You should have professional skills to help other person. Otherwise आप unintentionally you can do more harm than good. जो first lines हमने first तो नहीं but हाँ in the initial paragraphs से हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि the person who is practicing psychotherapy should be trained enough. Okay. Then comes alternative therapies. क्या और तरीके, ये तो हमने बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल साइंटिफिक थेरेपीज़ पढ़ ली जो यूज़ करी जाती है. बट देर आर अदर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जो एक्ट एज अ कन्वेंशनल थिंग विच हेल्प्स इन ट्रीटिंग पीपल, ठीक है. ओके. ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज टू द कन्वेंशनल ड्रग ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी, जो एक्चुअली चलता है उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लाई करता है. इसमें क्या चीज़ें आती है, योगा, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर,
herbal remedies, and so on. In the past 25 years, yoga and meditation have gained popularity as treatment programs for psychological distress. Schools में भी inculcate कर दिया गया है yoga, meditation, ठीक है, and everybody is getting more and more aware about these things, ठीक है. Yoga is an ancient Indian technique detailed in the Ashtanga Yoga of Patanjali's Yoga Sutras. Yoga, as it is commonly called today, either refers to only the asanas or body posture component or to the breathing practices or pranayam. ठीक है, योगा क्या होता है, या तो आसन होते हैं या प्राणायाम होता है, or a combination of two. Meditation refers to the practice of focusing attention on breath or on an object or mantra. Here, attention is focused. एकदम ध्यान देते हो आप अपनी breathing पर. In Vipassana meditation, now it is a type of meditation, also known as mindfulness-based meditation. अब ये जो keywords आ रहे हैं इन पे प्लीज़ फोकस करना. आपको लग रहा होगा मैं हर चीज़ में MCQ पे क्यों एम्फोसाइज करती हूँ, क्योंकि इन्हीं जगहों से MCQs बनते हैं, इन्हीं जगहों से केस स्टडी क्वेश्चंस भी इवन बनते हैं, जो आपका लास्ट सेक्शन ऑफ द पेपर होता है. एंड बहुत कन्फ्यूजन होता है कौन सी चीज़ किसको कहते हैं. मेक नोट्स ऑफ इट एंड रिवाइज देम डेली, क्योंकि अगर वो एक MCQ गलत होगा, वो 100 की जगह 99 होगा ना, बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है. तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस. देयर इज़ नो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और थॉट टू होल्ड द अटेंशन. बेसिकली आप ओवरऑल बस अटेंटिव फील करना चाह रहे हो. द पर्सन पैसिवली ऑब्जर्व द वेरियस बॉडीली सेंसेशन. मेरे को क्या फील हो रहा है, मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या सेंसेशंस हो रही है, हाथ में क्या फील हो रहा है, पैर में क्या फील हो रहा है. एंड द थॉट्स दैट आर पासिंग थ्रू हर और हिज अवेयरनेस. कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, वो क्या थॉट्स हैं, मैं एकदम शांत होने की जब कोशिश कर रही हूँ तो व्हाट थॉट्स आर ट्रिगरिंग मी टू लूज माई अटेंशन. वो सारी चीज़ें मैं फोकस पे रखूँगी. The rapid breathing techniques to induce hyperventilation, as in SKY, is found to be beneficial, low risk, low cost adjunct to the treatment of stress, anxiety, PTSD, depression, stress-related medical illness, substance abuse, and rehabilitation of criminal offenders. Oh my God, इतनी सारी चीज़ें याद कर लेना, बहुत important है ये वाला. SKY has been used as a public health intervention technique to alleviate PTSD in survivors of mass disasters. तो PTSD आएगा तो SKY याद करना है, ठीक है. सुदर्शन क्रिया योगा, राइट. योगा techniques enhance well-being, mood, attention, mental focus and stress tolerance, ठीक है. Proper training by a skilled teacher and 30-minute practice every day will maximize the benefits. तो इसका अपन को करना है, प्रैक्टिस कर सकते हो इतना तो. Research conducted at the NIMHANS India has shown that SKY reduces depression. अब PTSD आ जाए, depression आ जाए, दोनों में क्या याद करना है, SKY याद करना है. Further, alcoholic patients who practice SKY have reduced depression and stress levels. Insomnia is treated with yoga. Yoga reduces the time to go to sleep and improves the quality of sleep. So there are so many benefits. एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम एज सिम्टम्स की, मतलब सिम्टम्स भी नहीं बट एज फैक्टर्स की कौन सी चीज़ किस टाइप ऑफ योगा से हील हो रही है, ट्रीट हो रही है. देन कम्स कुंडलिनी योगा विच इज़ टॉट इन द USA, हैज़ बीन फाउंड टू be effective in treatment of various mental disorders. The Institute of Non-Linear Science, University of California, San Diego, USA, has found that Kundalini Yoga is effective in the treatment of OCD. ये भी याद रखना है, ये पर्टिकुलरली मेरे एग्जाम में आया था तो मैंने तो कर लिया था, ठीक है, आप भी कर लेना. कुंडलिनी योगा कंबाइंस प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स विद चैंटिंग और मंत्रास, ठीक है. दैट इज़ वाई आई एम एम्फोसाइजिंग इस पर इतना, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. चिल्ड्रन यूजुअली गेट कन्फ्यूज कौन सी चीज़ कौन से डिसऑर्डर को हेल्प कर रही थी, कौन सी चीज़ को रिड्यूस कर रही थी. तो मेक नोट्स ऑफ दीज. आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू. Prevention of repeated episodes of depression may be helped by mindfulness-based meditation called Vipassana meditation. This meditation would help the patients to process emotional stimuli better and hence prevent biases in the process of these stimuli. Then the last topic of the chapter with which we'll end this session is rehabilitation of mental ill. The treatment of psychological disorders has two components: reduction of the symptoms and improving the level of functioning or quality of life. अब milder disorders जो है वो तो treat हो ही जाते हैं, but काफ़ी ज़्यादा severe disorders की भी reduction देखी जाती है symptoms में. However, in the case of severe mental disorders such as schizophrenia, reduction of symptoms may not be associated with an improvement in quality of life.
अब माइल्डर डिसऑर्डर में तो सिम्टम्स रिड्यूस हुए तो आपकी लाइफ क्वालिटी बेटर हो जाती है, बट सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स में 2 सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो लिविंग है, एक्चुअल डेली लिविंग है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने मिले. Rehabilitation is required to help such patients become self-sufficient. इसलिए उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाता है. ठीक है. The aim of rehabilitation is to empower the patient to become a productive member of society to an extent possible. ठीक है. पॉसिबल एक्सटेंट तक आप क्या करना चाहोगे, उस इंसान को एज प्रोडक्टिव एज पॉसिबल बनाना चाहोगे. In rehabilitation, the patients are given occupational therapy, social skills training and vocational therapy. ठीक है. ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ऐसी स्किल्स सिखाई जाती है जैसे कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग एंड वीविंग टू हेल्प देम फॉर्म अ वर्क डिसिप्लिन, दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज हाउ यू वर्क, दिस इज हाउ यू बिकम कंसिस्टेंट इन लाइफ. ओके. सोशल स्किल ट्रेनिंग में क्या होता है, कम्युनिकेशन, रोल प्ले, इमिटेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है. द ऑब्जेक्टिव इज टू टीच द पेशेंट टू फंक्शन इन अ सोशल ग्रुप. अगर आप सोसाइटी में हो तो आप कैसे एक्ट करोगे, right? Cognitive retraining is given to improve the basic cognitive functions of attention, memory and executive functions. जो basic functions है जो usually a person loses the track of while facing disorders, उन चीज़ को वापस से सही करने में this is used. After the patient improves sufficiently, जब इन तीनों चीज़ों पर फोकस हो जाता है, कौन कौन सी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी व्हेन यू बिकम प्रोडक्टिव, व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म वर्क डिसिप्लिन. देन नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, जिसमें आपको इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाई जाती है जिससे यू कैन एक्ट इन अ सोशल सेटिंग, है ना. एंड देन द कॉग्निटिव रीट्रेनिंग, जिससे आप अपने कॉग्निटिव फंक्शंस पर थोड़ा सा होल्ड ग्रास्प करते हो. ठीक है. जब ये तीनों चीज़ें हो जाती है और इससे पेशेंट में इंप्रूवमेंट दिखने को मिलती है, देन वी प्रोवाइड देम विद व्हाट, वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें द पेशेंट इज हेल्प टू गेन स्किल्स नेसेसरी टू अंडरटेक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट. अभी तो हम नॉर्मली सिखा रहे थे ना, पेपर बैग मेकिंग, कैंडल मेकिंग. अब एक्चुअल जॉब प्रोफेशन करने में, कुछ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होल्ड करने में उन्हें ट्रेन किया जाता है. ठीक है. सो दिस वॉज इट फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6, विच इज अबाउट एटीट्यूड एंड social cognition. So we'll be starting with that and I'll see you in my next video. तब तक के लिए take care and bye bye.